हमने लास्ट कैपेसिटर में सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल किया था। Yes, sir. Yes, sir. Now next is एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कर लिया, सीरीज पैरेलल कर लिए थे कैपेसिटर के। नहीं, सीरीज पैरेलल नहीं किया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज 1 2 3 C1 C2 C3, क्लियर। C1 C2 C3, B1 B2 B3, तो लिखें when the capacitors are joining series, when the capacitors are joining series, the charge on each capacitor is same. Charge on each capacitor is same. तो जैसे यहाँ पे अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। The charge on each capacitor will be same. क्लियर। जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम आता है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, बट द पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor is different. Potential difference across each capacitor is different. V1, V2, V3, ठीक है। अब मेरे पास Q का फॉर्मूला क्या है, CV। अब जो टोटल पोटेंशियल है वो ऐड हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बाय C, Q बाय C सीरीज, Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3। चेक करो, Q कॉमन लेके काट दूं तो 1 बाय C सीरीज, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। वन बाय C सीरीज इज 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ठीक है। Hence in series combination the equivalent capacitance decreases.
Hence, in series combination, the equivalent capacitance decreases. Hence, in series combination, the equivalent capacitance decreases. Clear? याद रखना सीरीज में क्या चीज सेम होती है? चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चार्ज सेम, पोटेंशियल डिवाइड। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? सारी पॉजिटिव प्लेट एक तरफ होंगी, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, कैपेसिटर C1 C2 C3, पोटेंशियल V, पोटेंशियल V, पोटेंशियल V। In parallel combination, the potential across each capacitor, potential across each capacitor is same, but charge across each capacitor, charge across each capacitor is different. Every capacitor, I repeat, every capacitor will store charge, according, every capacitor will store charge according to its own capacitance. It will store charge according to its own capacitance. ठीक है, according to its own capacitance. याद रखना, all positive plates are joined together, all negative plates are joined together. ठीक है, अब टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। Q is Q1 plus Q2 plus Q3. Q is C parallel into V, C1V plus C2V, C3V. तो C parallel is C1 plus C2 plus C3.
C1 plus C2 plus C3. So equivalent capacitance increases ठीक है. तो C parallel is C1 plus C2 plus C3. ठीक है, बोलो बच्चे. ठीक है. तो C पैरेलल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ. हाफ C पैरेलल इनटू V स्क्वायर. ठीक है. और सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे. क्यू सेम रहता है तो क्यू स्क्वायर बाय 2C सीरीज. तो याद है ना एनर्जी के फॉर्मूला किए थे. हाफ C पैरेलल V स्क्वायर. ठीक है. बोलो कर दूं ना बेटा जी. ओके. अब आता है हमारे पास एक वर्ड जिसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल. क्या वर्ड यूज करेंगे. कॉमन पोटेंशियल. कॉमन पोटेंशियल बोलेगा शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर्स पे. शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर एक वर्ड आएगा. चार्ज कब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. Yes. ठीक है. तो लिखे टू कैपेसिटर्स two capacitors two capacitors having capacitance C1 and C2 having capacitors C1 and C2
and potential V1 and V2 have potential V1 and V2 carrying charge Q1 and Q2 carrying charge Q1 and Q2 are joined in parallel. Excuse me, sir. Are joined in parallel. Excuse me, sir. हाँ बोल. सर V1 एंड V2 के बाद रिपीट कर दो. V1 and V2 carrying charge Q1 and Q2 carrying charge Q1 and Q2 are joined in parallel. The charge will flow. The charge will flow from one capacitor to another. The charge will flow from one capacitor to another till they both attain the same potential. T1 चार्ज कितना है Q1, पोटेंशियल कितना है V1. दूसरा कैपेसिटर चार्ज C2, चार्ज Q2, potential V2. They are joined in parallel. They are joined in parallel. The charge will flow after sharing. दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा. आफ्टर शेयरिंग दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes, sir. अब जो टोटल चार्ज है वो अगर इस पे Q1 Q2 था, शेयरिंग के बाद क्या हो जाएगा? Q1 डैश और Q2 डैश, है ना? Q1 डैश और Q2 डैश. ठीक है. अब हमें पता है कि जो मर्जी हो जाए, जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है. तो लिखिए the total charge remain conserved. The total charge remain conserved अभी देख बेटा, ये दोनों कैपेसिटर कैसे लगे? पैरेलल में. ठीक है. तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या थी? Q की जगह C1 V1 प्लस C2 V2. मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2 मस्ट इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश. Q1 डैश प्लस Q2 डैश. ठीक है. तो Q1 क्या आ जाएगा बेटे? C1V प्लस C2V, क्योंकि V दोनों का सेम हो गया. C1 C2 अलग अलग थी, सेम. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? V C1 प्लस C2 implies V C1 V1 C2 V2 upon C1 plus C2. C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. This is the common potential. ये common potential का expression आ गया. Very very important.
इसमें कंडीशन डालो बेटा, ये कंपटीशन में या आईआईटी में पूछेगा। इफ द पॉजिटिव प्लेट is attached to negative plate and vice versa, then common potential V is C1 V1 minus C2 V2 upon C1 plus C2 upon C1 plus C2 प्लस की और माइनस आ जाएगा। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव एक तरफ थी, दोनों नेगेटिव एक तरफ थी, वहां पे पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लग जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे हरकरन, सर ये जो आपने C1 V1 माइनस C2 V2 करवाई, ये सिर्फ उसमें ही पूछते कंपटीशन वाले में? हाँ सर जो आपने ये कॉमन पोटेंशियल लिखवाया है माइनस वाला, हाँ, ये बोर्ड में आता है? नो, ओनली फॉर कॉम्पिटिशंस। बोर्ड में ये आएगा, पॉजिटिव ज्वाइन विद पॉजिटिव, नेगेटिव ज्वाइन विद नेगेटिव। कर दो पूरा बोर्ड। हाँ जी सर। अब हमारे पास डेरिवेशन है, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग। इन शेयरिंग, अब देख, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, इट इज हाफ C1 V1 का स्क्वायर, हाफ C2 V2 का स्क्वायर, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। हाउस नंबर 2 या 7, हाँ 2 या 3, हाँ नीचे ग्राउंड पूरा दिखेगा आपको। सर लाइट, लाइट से पहले, लाइट से पहले सफेद रंग की स्लाइड आपने सच्ची बताई, राइट हैंड साइड आपकी सोसाइटी, राइट हैंड साइड विक्टोरिया इंडियन सकते हो। हाँ कहीं घूमने की सड़क नहीं है, कहीं नहीं जाना सड़क पे। हाँ 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 हाँ, 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 सड़क से थोड़ा आगे है, आपके राइट सच्ची आपकी सोसाइटी से कैसे लोकेशन
ठीक है, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग हाफ C1 प्लस C2 इंटू बी का स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2, V कितना है, C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, इट इज हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये पूरी ब्रैकेट कटेगी एक, तो मेरे पास आएगा हाफ C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आंसर आ जाएगा। ये टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, नीचे वाली टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। ठीक है, अगर लॉस ढूंढना है तो टोटल एनर्जी बिफोर माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर, यहां तक रब कर दूं बेटा जी? अबे 1 मिनट से नोट करने दो। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बेटे। डन सर। जब हमें लॉस ढूंढना है तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, क्योंकि इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल एनर्जी कम है। ठीक है, तो लॉस हाफ C1 V1 का स्क्वायर हाफ C2 V2 का स्क्वायर, 2 C1 प्लस C2 C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर, एलसीएम लिया 2 टाइम्स C1 प्लस C2 C1 V1 का स्क्वायर C1 प्लस C2 C2 V2 का स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C1 C2 V1 का स्क्वायर C1 C2 V2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ब्रैकेट के साथ खोल दूं नेगेटिव कि अगले लाइन में खोलूं? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस के साथ खोलूं कि अगले स्टेप में माइनस खोलूं? क्या भी खोल दूं? तो जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, जब माइनस खोल दूं पता लग जाएगा, माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 2 टाइम्स C1 प्लस C2, ये दोनों कटे। ठीक है, C1 C2 कॉमन,